محکمہ خوراک ملیر کی سنگین غفلت اور مبینہ کرپشن، کروڑوں روپے مالیت کی گندم قرا فوڈ بورڈ کا بھی انکشاف۔ نیپٹیپ کے ملیر میں سرکاری گوداموں پر چھاپے، بارش کے پانی سے گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہو گئی۔ نیپٹیپ کی کئی گھنٹے تک گوداموں میں چھان بین، حکام نے ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی جانب سے گودام کی انکوائری کا کہا گیا تھا۔ کرپشن کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے گودام پر چھاپا مارا گیا۔ کراچی کو پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا منصوبہ K4 منصوبے پر بجلی کی ٹرانسمیشن لائن اور گرڈ اسٹیشن کے قیام کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک بھر کی بجلی ڈسپوز KGM اور چیف انجینئرز کا سندھ ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کا دورہ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر SDDC سلیم شیخ نے ڈسکوز سربراہان کو بریفنگ دی۔ مہمانوں کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی۔ سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ نوری آباد ونڈ کوریڈور سے کے الیکٹرک کو 100 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور بڑا کارنامہ، میئر کراچی نے اینٹی ریپ کرائسس سیل کا افتتاح کر دیا۔ سیل خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے بنایا گیا۔ تقریب میں US قونصلیٹ نکول تھیریوٹ، رکن سندھ اسمبلی قاسم سومرو اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ مرتضی وہاب کا دیگر اضلاع میں بھی اینٹی ریپ کرائسس سیل بنانے کا عندیہ۔ ملازمت کے لیے بھارت چھوڑنے والی حمیدہ بانو پھر کبھی اپنے وطن نہ جا سکی۔ بھارتی خاتون کراچی علاقہ منگو پیر میں رہائش پذیر، برسوں سے اپنے بچھڑے بچوں سے ملنے کی امید پر زندہ ہوں۔ خاتون نے دکھ بھری داستان سنا کر سب کو آپ دیدہ کر دیا۔ کون سی زمین سستی بیچی گئی، کس اراضی کا ریکارڈ تبدیل کیا گیا؟ سندھ میں زمینوں کی الاٹمنٹ کے 29 سالہ ریکارڈ کی چھان بین۔ سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے لینڈ کمیٹی قائم کر دی۔ لینڈ کمیٹی کے سربراہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج فاروق احمد چنہ مقرر۔ ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو، محکمہ اینٹی کرپشن کا نمائندہ، محکمہ قانون کا نمائندہ بطور ممبر کمیٹی میں شامل۔ محکمہ خزانہ کا نمائندہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری لینڈ بھی ممبر کے طور پر شامل۔ کمیٹی 1 جنوری 1985 سے زمین کے الاٹمنٹ اور رد و بدل کے معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی مارکیٹ سے کم قیمت اور غیر قانونی الاٹمنٹ کو منسوخ کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی آگے موقع ملا تو سندھ کے ہر گلی میں، ہر محلے میں اس طریقے کی بسز جو ہیں، چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں، چاہے وہ BRT لائنز ہوں، چاہے پیپلز بس سروس ہو یا وہ پنک بسز ہوں، وہ انشاءاللہ چلتی رہیں اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات مہیا کر سکیں۔ دوبارہ موقع ملا تو سندھ کے گلی محلے میں بسیں ہوں گی۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں بڑا اعلان، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ترمیمی بل ایوان سے منظور۔ سندھ اسمبلی نے امیونائزیشن اینڈ اپیڈیمکس بل سمیت 3 بل منظور کر لیے۔ اسپیکر سراج سوراری نے غیر حاضر رہنے پر وزراء کو وارننگ دے دی۔ جماعت اسلامی کے رکن عبدالرشید کا مختلف علاقوں میں پانی کی قلت پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ جتنی پانی ہمیں چاہیے اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے کچھ علاقوں میں کچھ دنوں میں یہ ہوتا ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن اس کو سر پہلے سے کافی بہتر کیا گیا ہے۔ اور خود لیاری میں بھی میرے انتہائی محترم دوست ہیں، لیکن کمپیئر اگر کریں کچھ عرصہ پہلے سے تو اب سر کافی اس میں بہتری بھی آئی ہے۔ یوم شہداء کے حوالے سے کراچی کے بحریہ آڈیٹوریم میں تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور دعا کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، ناصر شاہ اور میئر کراچی کی شرکت۔ IG اور کراچی پولیس چیف اور بزنس مین عقیل کریم بھی شریک ہوئے۔ PG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص، جاوید شیخ، سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان اور رمضان چیپا بھی شرکت کی۔ IG سندھ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو خصوصی یادگاری شیلڈ پیش کی۔ IG اور وزیر اعلیٰ نے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کو بھی شیلڈ سے نوازا۔ IG سندھ نے DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کو بھی اعزازی شیلڈ پیش کی۔ پولیس اہلکار سمیر حمزہ کی جانب سے نغمہ پیش کیا گیا۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا کی شاندار پرفارمنس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔
आंखों का इलाज करवाना है तो अब करना होगा इंतजार। स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन हुए ताखिर का शिकार। सर्जन्स और ओटी स्टाफ की कमी, मेजर ऑपरेशन मुअत्तल, बजट की अदम फराहमी, मरीजों के लिए अद्वियात और लेंसेज का इंतजाम मुश्किल। अस्पताल में टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम का भी फुकदान है। मेयर कराची की JUIF के सिटी काउंसिल मेंबरान से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत हुई। JUIF के मेंबरान ने मुर्तज़ा वहाब को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। मेयर कराची के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कहा। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। PC होटल में पाक ईरान सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक तकरीब। सिस्तान और बलोचिस्तान के गवर्नर की पाकिस्तानी सरमायाकारों को ईरान में सरमायाकारी की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत करने पर जोर। ज़ुबैर मोतीवाला की वर्किंग रिलेशन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वाटर बोर्ड की एंटी थेफ्ट सेल की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी चोरों के 24 ठिकाने में स्मार। सेबो गोट, गुलशन तौहीद और यारो गोट भी शामिल। मुतलका थाने में 6 मुकदमा दर्ज। इंचार्ज आमिर खान के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट आवाम का पानी चोरी कर रहे थे। कराची में बिजली बंदिश कम ना की जा सकी। 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मंगोपीर नुसरत भुट्टो कॉलोनी नॉर्थ कराची की बत्ती गुल। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 1.5 से 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वकीलों का कहना है कि पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। हाफिज नईम का कहना था, पानी दिया जा रहा है और ना बिजली। हमारी जमात के बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे। मलिक के इलाके बावनशाह में 4 रोज से बिजली गायब। शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर। शहरी होटल के खाने और सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने अवाम के अखराजात बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं किसी भी वक्त गैस गायब हो जाती है। हाँ, सबको बोला है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। पानी का भी मसला है ना वहाँ बहुत। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है सही तरीके से। कुछ भी बस बहुत बुरा हाल है केमाड़ी का। शहर में बलाई गुजरगाही भी इंतजामिया की गफलत का शिकार। कोरंगी 2.5 नंबर जाने वाली सड़क पर कायम पेडिस्ट्रियन ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। शहरियों का कहना था कि आए रोज हादसा हो रहे हैं। ब्रिज पर नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। औरंगी टाउन में पानी बहरान का खात्मा कैसे मुमकिन। चेयरमैन जमील जिया ने तमाम पार्टियों के रहनुमाओं को साथ बिठा लिया। MQM, नून लीग, PTI समेत दीगर जमातों ने सर जोड़ लिए। तमाम रहनुमाओं का सियासत से बालातर होकर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की धमकी काम कर गई। मुतलका इदारे मुज़ाकरात पर आमादा। पीर को मुज़ाकराती बैठक लगेगी। वज़ारत पेट्रोलियम, ओगरा और ऑयल एडवाइजरी काउंसिल के साथ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के मुज़ाकरात होंगे। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने वाइट ऑयल पाइपलाइन के मामले पर वजाहत तलब की थी। किराए में इजाफा और कोटा न मिलने पर ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की धमकी दी थी। सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के लिए पिंजरे की तामीर का काम मुस्तकिल ताखीर का शिकार। जून में तकमील की डेडलाइन देने वाला बल्दिया उस्मा कराची अगस्त में भी पिंजरे की तामीर मुकम्मल न कर सका। मोटरसाइकिल खरीदने वालों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। होंडा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 5,000 रुपये तक का इजाफा। होंडा CD70 की कीमत 3,000 रुपये इजाफे से 1,57,900 रुपये हो गई। होंडा 70 ड्रीम 1,68,900 रुपये पर गई। होंडा पीरियड
5,000 रुपए इजाफे से 2,08,900 रुपए की हो गई। CG 125 भी 3,000 रुपए महंगी 2,34,900 रुपए पर पहुंच गई। कारोबार पर मनफी असरात, ताजिर परेशान। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमे स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया, आवाम के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। आवाम की शिकायत और मसाइल बर वक्त हल करने की हिदायत। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट 12वें मरहले में 25,000 इनर वर्ल्ड तलबा और तालिबात की शिरकत। रजिस्ट्रेशन नंबर 1,70,001 से 1,95,000 तक उम्मीदवार शामिल हैं। कामयाब तलबा और तालिबात को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गवर्नर सिंध से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मेहदी सिफारी और सिस्तान के गवर्नर मोहम्मद कमारी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़, सिंध और सिस्तान के मबैन ताउन में इजाफा और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कामरान टिसोरी का कहना था कि बामी ताउन में इजाफे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पाकिस्तान हाउस में मरकजी इलेक्शन सेल कायम हो गया। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने के लिए फॉर्म भी तैयार। उम्मीदवारों से 3 नुकाती हल्फनामे पर दस्तखत लिए जाएंगे। उम्मीदवार MQM के मंशूर और पॉलिसियों पर अमल करेगी। MQM की जानिब से जल्द इलेक्शन कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 14 अगस्त तक आज़ादी का अशरा मनाने का ऐलान। आज़ादी का जोश और जुनून। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। झंडे और झंडियों की खरीदारी उरूज पर। बच्चे फौजी यूनिफॉर्म खरीदने को ज्यादा तरजीह देते हैं। कराची के परचम गली में बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी परचम बनाकर अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ने वाले निसार अहमद को लोग अब बाबाई परचम के नाम से पहचानते हैं। वाघा बॉर्डर, किडनी हिल, मज़ार कायद पर उनके बनाए परचम एजाजी तौर पर जाते हैं। सोने की कीमत में 1,300 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 2,21,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,901 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $4 फी औंस सस्ता। फी तोला चांदी की कीमत 2,750 रुपये पर बरकरार। बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत। टेक्सटाइल बरामदात में मजीद कमी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने डाटा जारी कर दिया। एप्टमा के मुताबिक एक साल में टेक्सटाइल की बरामदात में 21% की नुमायां कमी हुई। कराची में 3 रोज़ा टेक्सटाइल मशीनरी और केमिकल एक्सपो। अली बाबा ने टेक्सटाइल मशीनरी, गारमेंट्स और केमिकल एक्सपो का एहतमाम किया। तर्जुमान अली बाबा उस्मान सुहेल के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा मौका है। मुर्तज़ा वहाब सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर मुंतखब। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इत्तफाक़ राय से फैसले की मंजूरी दे दी। अकबर कायम खानी को बदस्तूर सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखा गया। इजलास में दीगर जिम्मेदारान के इंतखाब और दीगर फैसलों की भी तौसीक की गई। मेयर कराची सूबे में कौमी खेल के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। क्रिकेट टीम के लिए नए सितारों की तलाश। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत अंडर 13 ट्रायल्स, जोन 7 के ट्रायल्स नॉर्थ नासिमाबाद जिमखाना में हुए। बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने बैटिंग बॉलिंग के खूब जौहर दिखाए। और दो दरिया पर शोधा पुलिस मैराथन का इनाकाद। वाबिया के सुहेल आमिर ने रेस जीत ली। आर्मी की रुबेला फारूक गर्ल्स कैटेगरी में फातेह करार पाई। 500 से ज़ायद एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला तय किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।